I will teach you about the English 26 letters. All of you have heard about these 26 letters many times. The teacher has told you, has taught you also, no doubt, but many of the students generally forget the 26 letters, what can be called, or what is the importance of these letters. Now, I am going to tell you that any language, either it may be English, Hindi, Sanskrit or Bengali, all language has three its linguistic aim. Linguistic aims, every language has three aims. First, speaking or reading. Second, writing. Third, understanding. There should be the proper attachment, grip of these three things. Otherwise, nobody can write English or read English or understand English. Now, I am going to teach you about these letters. And also, I am very, very curious to write them on this blackboard. Now, I am present before blackboard. I am going to perform my duty now because Mr. Aspesh Singh has advised me, ordered me to do so, and I hope. Now, I am going to tell you now about the 26 letters. All of you have read and properly know you about these letters, but I am going to write it on the blackboard. Now you can see. अच्छा, very good. Light हो रहा है देखिए. Good, yes, very nice. हाथ से लग जा रहा है क्या? हाँ. डांट ना टच कर. अरे भाई बुढ़ौती है ना टच कर. But practice, you have excited for teaching. It's my proudful. There are 26 letters in the English language. अब मुंह से बोलना पड़ेगा हमें अब. Yes, sir. Depend on you. If you going to make the picture of this box now, you can see it on the blackboard, and these 26 letters will be kept by me in this box. Now, from A to Z, all letters have been closed, have been kept, have been present in this box. कैसे बनाए गए हैं? Then what is the name of this box? What is the name of these letters in this box? Alphabet. Alphabet. Krishna? Alphabet. When you will omit one letter from this box, remove one letter from this box, then will you say alphabet this box? No, because one letter is lesson has been drawn out from this box, then you cannot say it alphabet. Alphabet has its two parts. Alphabet has its two parts. First part is only consonants, vowels. Consonants and vowels. Yes. You can also write consonant or vowel only you can write. But the number of the letters is more than one, then you can write easily consonant or vowels. Vowels, the digit number of the vowels is 21. Consonants, number of the vowels is only 5, is equal to 26. 21 and 5. ये 5 लिखे हैं उसका सट गया हो. अरे भाई हाथ है तो कंपन ट्रेम्बलिंग हो जाती है, हाथ उंगलियों में ना कंपन हो जाता है ना.
लिखना छोड़े हमको 10 साल But हो you गए। are spoken the 5 exactly. हाँ मन 10 साल हो गया ना तो घबरा जाएगा, हाथ कप गया तो क्या करेंगे। होता है शायद जनरल नहीं, हो गया ये 26। अब मुझे ये कहना है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट दीज letters are consonant and the letter are vowels. I have written the number of these 21, 21st and only 5. But how will you say? How will you define it? Can you define it? Can you tell me about the consonant or about the vowel? Any one of you? हिंदी में आ जाए हम थोड़ा सा। कॉन्सोनेंट को डिफाइन कौन करेगा? कॉन्सोनेंट क्या है? उनमें से कोई खड़ा होकर बता दे बेटा। कॉन्सोनेंट को कैसे डिफाइन मैंने बतला देना। जैसे तुम कहोगे, मान लो गाय के बारे में कहोगे कि गाय होती है, तो गाय तो सो मेनी काइंड से गाय होती है ना, कह तो देते हो, लेकिन गाय की असली क्वालिटी क्या है कि गाय दूध देती है। 4 पैर का तो बैल भी होता है, घोड़ा भी होता है, गधा भी होता है, लेकिन वो गाय क्या करती है? दूध देती है। उसकी मेन विशेषता यही है ना। अब बताना हमें है कि आखिर कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे हम? मास्टर साहब, सर कॉन्सोनेंट कोच साहब किसको कहेंगे? तो अधिकांश अध्यापक क्या बता देते हैं कि कॉन्सोनेंट 21 है तो 21 है। ये तो उनकी संख्या है, डिफिनीशन नहीं है। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिफिनीशन नहीं है, ये तो डिजिट में बता रहे हैं। तो मैं जानता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट क्या है, वावेल्स कैसे पहचान लेंगे। तो समय तो ले रहा है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, फोन आएगा, जाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, कैसे डिफाइन करें कॉन्सोनेंट क्या है? हिंदी बता दूं कि इंग्लिश में? अच्छा, कॉन्सोनेंट्स इट मीन्स 21 लेटर्स, ए कलेक्शन, ए ग्रुप ऑफ 21 लेटर्स। वावेल मीन्स ए ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स। When you will mix these letters in one, या keep all these letters in a box, then it is called alphabet. What is consonant? Consonants are the letters which are pronounced with the help of vowels. Please pay attention. Also, I warn you to pay attention what I say now, because you are the teacher of mathematics. Yes. You have no perfect knowledge of English, how to speak and how to write. Yes. Don't mind it, don't take it seriously. I am advising you about this fact. तब क्या हुआ? Consonant are the letters which are pronounced, uttered with the help of vowels. Without the help of vowels, all the consonants are incomplete half. Suppose I am going to write the name of anyone. Now, Aman, a vowel, yam, consonant. If you omit a from this m and n middle of the yam and n, then you cannot pronounce it perfectly. ये अम्न, it will be pronounced as अम्न। समझे ताड़ू? ये भोजपुरी ऐसे बोले, समझता हूँ जानो, देखिए हमारी भोजपुरी समझ रहे हो ना बेटा। अगर इसको एक को हटा देंगे तो ये अम्न कहा जाएगा, अमन नहीं कहा जाएगा। तो कैसे मालूम हुआ? देखो, विदाउट इट्स हेल्प ये हाफ प्रोनाउंस्ड है। कोई भी देख लो, कोई भी देखो, इसके जैसे उमा लिखना है, मान लो सपोज, मालूम उमा लिख दिया, तो यू क्या है? वावेल है। यम क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन ए हटा देंगे तो एम का पूरा कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो परिभाषा क्या बनी? कॉन्सोनेंट्स आर ओनली प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ मिस्टर वावेल्स। वावेल्स ऑलवेज पे अटेंशन। अभी हो गया हमारा। और क्या हमें बताना है? क्या बताना है? वावेल्स। व्हाट आर वावेल्स? हाउ विल डिफाइन इट? If you tell the number of the vowels only 5, but it is not definition, it is a number. Always pay attention. Then come to the point, please. What is vowels? Vowels are those letters which are pronounced itself. Which means the letters. In other words, vowels have no need to pronounce
themselves because they are free, they are self-dependent, they need no help of any letters or any consonants to pronounce itself. हिंदी में आ जाइए, स्वर वह है जिसको उच्चारित होने के लिए किसी भी व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं भी आप लिखकर देखिएगा, जो 5 हैं उन 5 जो लिखे गए हैं उनका उच्चारण, जैसे यहीं पर देखो यू के बाद कहीं कोई वावेल्स लगा है, यहीं पर कोई लगा है, क्योंकि यू का है वावेल्स है, ये सेल्फ प्रोनाउंस्ड है, ये स्व उच्चरित है, स्व बोला गया है, इसके लिए किसी भी स्वर अथवा व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं। और माँ साहब बोलिए, अभी बताऊंगा, एक और बताऊंगा, थोड़ा जिगर में कुछ इच्छा है बता दो, और नहीं आएगा तब तक मैं चल रहा हूँ, मुझे कल सुबह चले जाना है साथ ही। लड़का गाड़ी स्टार्ट करेगा, मैं कल काम चला जाऊँगा। फिर देखिए यहाँ W, बोलो बेटा क्या लिखे हैं, W एंड भाई समटाइम्स आई वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट लाइक यू सिटिंग ऑन द बेंच, आई वॉज ओनली एवरेज स्टूडेंट एट दैट टाइम, आई studied from Varanasi, BHU, and also Calcutta University. I am product of Calcutta University at last. अब देखेंगे, लेकिन बच्चे हिंदी ज़्यादा पसंद करते हैं। W और Y ये क्या है, क्या देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। W Y क्या है बेटा है, ये किसकी सही में लिखे गए हैं W Y? रियल सेंस में इनका वास्तविक रूप क्या है, कॉन्सोनेंट, देख लो, नहीं है A-E-I-O और तो वावल से बेटा, लेकिन तब W I किस लाइन में आ गए, नहीं आ गए, इसको मुझे बुलाना पड़ेगा, अपने आप आ गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मार साहब आप भी थोड़ा बढ़ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ना भाई, आप ओहो माई डिपार्टमेंटल आप हैं, हमारे आप पैदल हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, तब कहने में क्या लगा है। अब देखिए बचिए बच्चों के नई बात बता रहा हूँ, बच जाइए थोड़ा, कहीं बचिए ना, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, बच जाइए, मैं तो बच्चों में बच जाता हूँ। टीचर सुन लीजिए, टीचर सक्सेसफुल वही है जो बच्चों के साथ एक कंपनी कर लेता है। बच्चों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, हम बकबक करते जाएंगे को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इसलिए हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, आपको हम जो कहो समझ लो हो, तो हम इंग्लैंड कहीं बंगाली बोलना, संस्कृत बोलना, बंगाली बोलते हैं। अब देखिए W और Y, मतलब मुझे कहना है कि देखिए ये बहुत मार्केट की बता रहा हूँ, W और Y जो है यह रियल, इसका फॉर्म क्या है, कॉन्सोनेंट, उसी लाइन में भाई A-E-I-O के अलावा तो उसी में गए, लेकिन W I चोर है ये, these 2 letters are thieves, not thieves, they change their place according to the position and circumstances when they say, इसमें है ना, लेकिन कैसे होते हैं आखिर, इनकी पोजीशन क्या है। ये कहता है कि मैं इधर भी जाता हूँ, इधर भी दाएं बाएं पाछे, लेकिन मेरी शर्त है जब मैं अपनी घात पाता हूँ तो मैं स्वर हो जाता हूँ, नहीं तो मेरा ओरिजिनल फॉर्म किसका है, कॉन्सोनेंट का है, रूप मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन जब घात पेश पाता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, स्वर। कैसे होता है भाई, हाँ कैसे होता है, W कहता है, Y दोनों कहते हैं साथ साथ, कि अगर मैं किसी शब्द के अंत में आऊँगा या किसी शब्द के बीच में आऊँगा तो मैं वावेल हो जाऊँगा, और किसी शब्द के शुरू में आऊँगा तो सदैव क्या रहूँगा, जो हूँ, अर्थात कॉन्सोनेंट। जैसे है ना, ये शब्द के शुरू में के बीच में है, वर्ड शुरू में है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, W है, वो है, जो भी हो, इसका मतलब कि ये तो भाई कॉन्सोनेंट है ही, या तो कोई झगड़ा है नहीं, क्योंकि लेकिन ये कहते हैं कि जब इधर आऊँगा, कहीं भी इधर आऊँगा अंत में या शुरू में, तो क्या हो जाऊँगा, स्वर हो जाऊँगा, स्वर उच्चरित होऊंगा, स्वर होता भी हूँ, सेमी वॉल्स हो जाऊँगा। कैसे, मान लीजिए ये तो समझ आ रहा है आपको ना, ये बीच में आएंगे तब देखिएगा धक्का धुक्की करें, तो ये कहते हैं कि मैं धक्का धुक्की कर देता हूँ। कैसे कर देंगे भाई धक्का धुक्की, उच्चारण कीजिए, उच्चारण बोलिए, मिलना चाहिए, आउल,
ये देखिए, ये बीच में है ना, क्या है डब्लू, कान सुनने देने के बीच में, तुषाने क्या कह रहा है, स्वर, इसे क्या कहेंगे, सेमी वॉल्स। अब कहता अंत में जाएंगे कैसे भाई, अंत में देखिए, तुषाने कीजिए उसका, ये सब बच्चे जानते हैं। थैंक यू सर, वेरी वेरी। लग रहा है तुम दिमाग में देखो, ये मैं तुमको बता देता हूँ, कीप साइलेंस। कोई टीचर तुमको बताया नहीं होगा, बुरा मत बनेगा सर। नहीं, यहाँ का कोई टीचर, मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग सेंटर में, CMS में गया हूँ, कोचिंग सेंटर में लोग बुलाते हैं, ऐसे ही जाता हूँ, लगता हूँ फक्कर पागल हूँ, लेकिन व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े से, तो मुझे देखोगे तो कहोगे कि कहीं पढ़े लिखे होंगे, नहीं कहोगे ए भाई बुढ़वा कहाँ जाता, नहीं बेटा